नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट एनिमल टिश्यूज नाउ। अब हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बॉडी होती है या जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर टिश्यूज बनाते हैं एंड देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर दैट वी कैन सी इन द एनिमल्स। दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का जो ग्रुप है वो फंक्शंस जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक सिमिलर काइंड का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो एनिमल्स के अंदर ये जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं लाइक वी आर breathing, the food is getting digested in our body, we are thinking, the messages are transmitted in our body। तो ये जो different different functions हैं वो different different group of cells जो है वो perform कर रहे हैं। So let us have a view that how animal tissues are divided or classified। The very simplest tissue and the first division is the epithelial tissue। The second is the muscular tissue that is helping our body to move because muscular tissue is contracting and relaxing and it helps in movement of our body। The next type of animal tissue that is found in the body is connective tissue and the last is the nervous tissue। Now let us study about these tissues one by one in detail। First talking about the epithelial tissue। As I told you कि जो epithelial tissue है that is the simplest tissue, ये सबसे simple tissue है जो animals की body में मिलता है। It is actually a protective tissue in animal body। एक protective layer है animal body के अंदर and it covers most of the organs and cavities within the body। हमारी body के अंदर maximum organs और cavities की जो एक outer जो lining है that is formed by the epithelial tissue। It also forms a barrier to keep different body systems separate। different body systems obviously क्योंकि ये outer covering है तो different body systems को separate करने में भी जो tissue help करता है that is known as epithelial tissue। अब where this epithelial tissue is found, ये हमें कहाँ मिलता है? It is found in skin, lining of mouth that is our buccal cavity and blood vessels, lung alveoli and kidney tubules। Further, let us study about the structure of epithelial tissue। Epithelial tissue जो है it do not have any intercellular spaces। cells के बीच में कोई भी intercellular space जो है वो नहीं मिलता है और इसके जो cells होते हैं they are permeable। permeable का मतलब it can allow movement of substances। They remain separated from the tissues beneath them because of a thin membrane over them। ये जो tissues हैं वो separated रहते हैं अपने नीचे वाले tissues से remain separated from the tissues beneath them। इन epithelial tissues के नीचे जो tissues present है क्योंकि ये outer layer है, अब नीचे वाले टिश्यूज से ये सेपरेट रहता है बिकॉज ऑफ अ मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। हम उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से ये जो टिश्यूज हैं वो सेपरेट रहते हैं दूसरे टिश्यू से और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन दैट इज नोन एज कोलेजन। इसके अंदर एक प्रोटीन मिलता है दैट इज द मैट्रिक्स प्रोटीन एंड दैट इज टर्म्ड एज कोलेजन। सो ये हेल्प करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन टू रिमेन देम सेपरेटेड फ्रॉम द टिश्यूज बीनीथ देम। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम जो है वो मिलते हैं। सो फर्स्ट इज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट इज द सिंपल क्यूबॉइडल, नेक्स्ट इज सिंपल कॉलुमिनार, नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल। तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम है इनके अंदर जो सेल की जो शेप्स है, जो उनका पैक होने का जो वे है वो डिफरेंट होता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम दैट आर फाउंड इन अवर body in the animal body। Now if we talk about the different types of epithelium, then we are first going to talk about the simple squamous epithelium tissue। Talking about its structure, they have a delicate cell lining and possess a flat thin structure। Whereas जो stratified squamous epithelium होता है उसमें the epithelium squamous cells are arranged in several layers। काफी layers के अंदर layer by layer जो है इसके cells जो हैं वो arrange होते हैं। In the columnar type of epithelium, they are column like।
जो उनके जो टिश्यूज हैं उनकी जो शेप्स होती है दैट इज कॉलम लाइक. Simple squamous epithelium are found in alveoli and Bowman's capsule nephron in kidney. किडनी के अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर नोन एज नेफ्रॉन. स्किन के अंदर हमें मिलता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, वेयर एज अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर हमें जो टाइप ऑफ एपिथेलियम मिलता है दैट इज अ कॉलमनार एपिथेलियम. Moving further, let us study about connective tissues. So, connective tissues are specialized in connecting and anchoring the body. These are loosely bound cells present in intercellular matrix. That means they are loosely प्रेजेंट, यानी कि सेल्स जो हैं वो बहुत ही फ्रीली जो है वो मूव कर पा रहे हैं. मैट्रिक्स जो है जो हमें सेल्स में मिलता है इट कैन बी डेंस, रिजिड और जेली लाइक. And the nature of matrix varies depending upon the functionality of the connective tissue. कि connective tissue is of different types. अब कनेक्टिव टिश्यू कौन सा फंक्शन जो है उसे परफॉर्म करना है, इस पे डिपेंड करता है कि जो उसका मैट्रिक्स है वो डेंस होगा, रिजिड होगा या जेली लाइक होगा. So here are the examples of connective tissues. In the diagram you can see that there are different type of connective tissues are present in our body. For example, adipose tissue, bone, blood, loose connective tissue. So these are the different type of connective tissues that can be found in the human body. Talking about these connective tissues, first let us study about blood. You all know that कि blood जो है it helps in the transport of different materials. ब्लड जो है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में फ्लो करता है और जब ये ब्लड फ्लो करता है तो वो अपने साथ एक्चुअली में कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, फूड को, वेस्ट मटेरियल को एंड डिफरेंट हार्मोन्स को हमारी बॉडी में. सो ब्लड इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड के जो भी सेल्स होते हैं वो एक फ्लूइड के अंदर हमें प्रेजेंट मिलते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. ब्लड सेल्स जो हैं दीज आर आरबीसीज दैट इज रेड ब्लड cells, WBCs and platelets. RBCs as you all know they contain hemoglobin. जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ही हमारी बॉडी में जो है डिफरेंट सेल्स तक जो है वो पहुंचती है. प्लाज्मा contains proteins and hormones. RBCs have hemoglobin which carries oxygen to tissues, whereas जो WBCs हैं white blood cells they act as soldiers of our body और वो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं they protect our body against different infections. Actually they are helping us to fight against diseases. Next are the platelets. Platelets are helped in blood clotting. कहीं पे भी अगर इंजरी हो जाती है तो you can see कि after some time जो blood है वहां से आना स्टॉप हो जाता है. That is known as blood clotting. और उस blood clotting में जो cells help करते हैं they are known as platelets. और ये जो तीनों type of cells हैं RBCs, WBCs and platelets ये हमें प्लाज्मा के अंदर जो है freely floating जो है वो मिलते हैं. Talking about the next connective tissue that is bone, जो कि एक हार्डेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी में. जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, एक स्ट्रक्चर जो है हमारी प्रॉपर बॉडी का वो प्रोवाइड कर रही हैं बोन्स. दे ऑल्सो एंकर्स द मसल्स के मूवमेंट में भी बोन्स जो हैं वो हेल्प करती हैं बिकॉज बोन्स आर कनेक्टेड विद अदर बोन्स ऑल्सो एंड बोन्स आर कनेक्टेड विद मसल्स ऑल्सो. तो हमारी मसल्स को भी हेल्प करती हैं बोन्स कि किस तरीके से मसल्स को फंक्शन करना है. बोन टिश्यू इज स्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल इन नेचर. सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है और ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है. बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन अ हार्ड मैट्रिक्स एज वी हैव स्टडीड कि डिपेंड करता है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे उसका टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वो डिपेंड करता है. तो जो बोन के जो सेल्स होते हैं वो हार्ड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. Further, let us talk about cartilage. Now you have seen the tip of your nose, it is soft. You have seen your ear pinna. So this is again soft. यहाँ पे जो है हमें कोई bone नहीं मिलती है. तो यहाँ पे क्या चीज है जो present होती है? That is the cartilage. So it is present over the joints of the bones. It provides them with a smooth structure and examples are nose tip and ear pinna.
They contain solid matrix that is made up of protein and sugar. It also provides support and flexibility to various parts of our body. So cartilage जो है वो हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है और डिफरेंट पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है. Further, let us talk about ligaments. अब I have told you कि जो bones हैं वो bone से connected होती है. For example, आपकी जो ये bone है जो आपके इसमें front part of the arm में मिल रही है वो इससे जो इधर की जो bone है उससे connected है. तो जो दो bones हैं वो आपस में connected होती हैं. अब ये जो दो bones हैं वो किसके through connected है? That is connected through ligaments. So tissue is very elastic and cells have a little matrix. इन cells में बहुत ही कम जो है वो मैट्रिक्स मिलता है. Further are tendons. अब बोन्स और बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है किसकी हेल्प से? लिगामेंट्स की हेल्प से. और अभी हमने पढ़ा था कि जो बोन्स हैं दे आल्सो एंकर मसल्स, यानी कि मसल्स को भी हेल्प करती हैं. तो अब टेंडन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने में, एंड दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी विद ग्रेट स्ट्रेंथ. Further, this is areola tissue. Act as a filter between the spaces present inside the organs of the body. Body के organs में जो spaces present होती है वहाँ पे ये जो areola tissue होता है it acts as a filter and it also helps in repair of the tissues और at times ये हमारी body को toxins से भी fight करने में help करता है. Areola tissue हमें कहाँ मिलता है हमारी body में? It is found in skin and it is found in bone marrow. Now the next question is where are fats stored in our body? Fats जो कि हम कंज्यूम करते हैं थ्रू आवर डाइट. अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो फैट्स हैं ये हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होते हैं. सो स्टूडेंट्स, दीज फैट्स आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू. हमारी जो स्किन होती है उसके नीचे जो है एक लेयर ऑफ टिश्यू मिलता है दैट इज नोन एज द एडिपोज टिश्यू जो कि फैट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है. दे आर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अब इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. इंसुलेटर मीन्स ये हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. एडिपोज टिश्यू में जो है फैट स्टोर होता है और ये जो फैट है इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग वार्मथ टू अवर बॉडी. एंड मोर ओवर क्योंकि आपने पढ़ा कि ये दो ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है तो इसीलिए इट इज एक्टिंग एज अ कुशन टू द ऑर्गन्स. कोई भी इंजरी होने से ये प्रिवेंट करता है और ये एक कुशन यानी कि एक सॉफ्ट सपोर्ट जो है वो बनता है बिटवीन two organs. So the fats are stored in adipose tissue in our body. Next, let us study about muscular tissue. So, as I told you earlier also कि हमारी body के अंदर जो muscles हैं वो contract करती हैं और relax करती हैं that are actually helping in the movement of our body. So, जो muscular tissue होता है जो कि बना होता है muscle cells का, they help in the movement of our body. So, these are made up of muscle fibers और ये जो muscle fibers होते हैं they are actually the long cells. It allows movement in our body और जो प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हेल्प करते हैं हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, दीज प्रोटीन्स आर नोन एज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. फर्दर दीज प्रोटीन्स कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में एंड रिलैक्स करने में ये जो प्रोटीन्स हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं ये एक मेजर रोल जो है रोल प्ले करते हैं. इन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रही हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट में हेल्प कर रही है. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग आवर बॉडी पार्ट्स टू मूव एंड दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फर्दर, if we talk about muscular tissue, then there are two kinds of muscles that are found in our body. दो तरह की muscles जो हैं हमें हमारी body में मिलती हैं. First are the voluntary muscles and second are the involuntary muscles. Voluntary muscles वो muscles होती हैं students that are under our control, जो हमारे control में. For example, if I want to move from one place to another, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे move करना है तो मेरी जो legs की muscles जो हैं that are working under my guidance. जब मुझे मूव करना है तभी जो लेग्स की मसल्स हैं वो वर्क कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई हैव टू मूव
अ स्टेप फॉरवर्ड। तो इस वक्त मेरी जो लेग्स की मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हुआ है, तभी मेरी बॉडी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करी है। पर ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हुआ है दैट इज अंडर माय कंट्रोल, जो मैंने चाहा है। सो ऐसी मसल्स जिनका जो कंट्रोल है वो हमारे अंडर होता है, दोज आर टर्म्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। वेयर एज जो ऐसी मसल्स होती हैं जो दोज आर वर्किंग नॉट अंडर अवर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल हमारी हार्ट की जो मसल्स है, हमारी हार्ट की मसल्स को वी स्पेसिफाई एज कार्डियक मसल्स। हार्ट जो है वो अपने आप ही ऑल द टाइम जो है वो बीट कर रहा है। तो जो हार्ट की मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर रही हैं, दे आर वर्किंग 24 आवर्स। तो ऐसी मसल्स जो अपने आप जो है वर्क कर रही हैं, दोज आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल, दोज मसल्स आर नोन एज इनवॉलेंट्री muscles. Next, let us study about striated और skeletal voluntary muscles. अब striated या skeletal voluntary muscles क्या होती हैं? As the name is suggesting, अगर हम striated muscles की बात करें, striated muscles का मतलब होता है कि ये जो muscles हैं इसके अंदर हमें light and dark bands जो हैं वो देखने को मिलते हैं। स्ट्राइटेड यानी कि इसमें हमें बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो वॉलेंट्री, सी एज दे आर वॉलेंट्री मसल्स, तो दैट मीन्स दे कैन मूव अकॉर्डिंग टू अवर विल, हमारे विल के अकॉर्डिंग ये मूव करेंगी। दे आर अटैच्ड टू बोन्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। आपने नेम में देखा कि हम इनको स्ट्राइटेड या स्केलेटल मसल्स बोल रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको स्केलेटल मसल्स क्यों बोला जाता है? ये मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। और क्योंकि इन बोन्स के अंदर हमें लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इनको स्ट्राइटेड मसल्स जो हैं वो बोलते हैं। द सेल्स ऑफ दीज मसल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट। मल्टीन्यूक्लिएट मतलब हमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर मिलते हैं। द एग्जाम्पल्स इंक्लूड द हैंड मसल्स एंड द लेग मसल्स। Further, let us talk about smooth muscles, unstriated muscles और involuntary muscles. अब involuntary मतलब they are not working under our control. For example, cardiac muscles, हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल से वो नहीं वर्क कर रही हैं. So these are termed as involuntary muscles. Now अब हम इनको क्या बोलते हैं? We also term as smooth muscles. और ये जो मसल्स होती हैं इनके अंदर कोई भी लाइट या डार्क कलर का बैंड जो है वो देखने को नहीं मिलता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो टर्म्ड एज अनस्ट्राइटेड मसल्स. हम इनको क्या बोलते हैं? अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, एज देयर आर नो लाइट एंड डार्क बैंड्स. जो इसके सेल्स होते हैं दे आर यूजुअली लॉन्ग एंड दे हैव अ पॉइंटेड एंड आल्सो. एंड द एग्जांपल्स ऑफ स्मूथ, अनस्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स इंक्लूड the muscles in alimentary canal, यानी कि जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प कर रही हैं, the iris of our eyes also. Next, the very important tissue is nervous tissue. हमारी बॉडी के अंदर different messages जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं. These all are happening only because of the nervous tissue. हमारा जो ब्रेन है दैट इज एक्चुअली द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. हमारा ब्रेन ही जो है वो सारे मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है. सो ये जो मैसेजेस का जो ट्रांसमिशन है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू. एंड जो सेल्स जो मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं दे आर टर्म्ड एज न्यूरॉन्स. सो नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन नर्व्स, ब्रेन and spinal cord, and neurons connect together to form the nerves of our body. काफी सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में मिलके हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम जो है वो फ्रेम करते हैं. अगर हम नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर देखें सो इट इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स. एक लंबा स्ट्रक्चर होता है. नर्व का ये जो लेंथ है ये ज्यादा क्यों है? ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इसे मैसेजेस को ट्रांसमिट करने हैं. दैट्स वाई जो न्यूरॉन जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लंबा होता है, सो दैट मैसेजेस जो हैं वो बहुत क्विकली जो है वो ट्रांसमिट हो सके. इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन देन इट डू हैव अ सेल बॉडी. इसकी एक बॉडी होती है जिसको हम क्या टर्म करते हैं? सोमा. और सोमा में से आगे जो डेंड्राइट्स हैं वो अराइज कर रहे हैं. इसके बीच में हमें न्यूक्लियस मिलता है दैट इज अगेन
द ब्रेन ऑफ द सेल, पूरे सेल का जो ब्रेन होता है दैट इज द न्यूक्लियस। अगर हम एंडिंग में देखें दैट इज द एक्सॉन टर्मिनल। जो डेंड्राइट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट डेंड्राइट्स, अगर आप डेंड्राइट्स देखें जो कि आपको सामने अगर आप देखें तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बाहर स्प्रेड होते हुए आपको दिख रहे हैं। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द मैसेज। ये मैसेजेस को रिसीव करने में हेल्प करते हैं डेंड्राइट्स। एंड अगर आप सेंटर वाला पार्ट देखें जिसको हमने टर्म करा है एक्सॉन, जो एक्सॉन होता है स्टूडेंट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेइंग मैसेजेस, ये मैसेजेस को कन्वे करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेइंग मैसेजेस अवे फ्रॉम सोमा। डेंड्राइट जो है वो मैसेज को रिसीव करेगा, फिर जो सेंटर बॉडी है दैट इज नोन एज सोमा, जो कि आपकी सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहां पे मैसेज पहुंचेगा। और जो नेक्स्ट पार्ट है जो एक्सॉन है, एक्सॉन इस मैसेजेस को जो है इस सोमा से आगे ट्रांसफर कर देगा एंड वो मैसेज कहाँ पहुंच जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल। अब जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 1 to 1 जो है प्रेजेंट होते हैं, एक के बाद एक प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूरॉन से मैसेज जो है वो जैसे ही ट्रांसफर होके एक्सॉन टर्मिनल तक आएगा, वो जो मैसेज है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक क्या है, ट्रांसमिट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट let us study more about the structure of neuron. As I explained you that it is an elongated cell, लंबा है क्योंकि messages को transmit करना है। It consists of cell body that is termed as soma, which is having branch-like structure that is dendrites, and these dendrites are receiving the messages. Then nucleus in soma that is actually acting as the brain of the cell, and the nerve endings of the cell are connected to the cell body via एक्सॉन। अ नर्व सेल कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर तक जो है ये लंबा हो सकता है। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज कि जो एक्सॉन, एक एक्सॉन जो है वो दूसरे एक्सॉन से कनेक्ट नहीं करती है, उसके बीच में गैप होता है। एंड दैट गैप, वो जो गैप जो प्रेजेंट होता है, अब उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि मैसेजेस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इफ दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, अगर ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है तो जो दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो इससे फिजिकली जो है वो कांटेक्ट में नहीं होते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैसेज यहाँ तक आ गया तो वहां यहाँ वो, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, ये एक न्यूरॉन का एंड है, एंड दिस इज द डेंड्राइट। डेंड्राइट मतलब ये नेक्स्ट न्यूरॉन की स्टार्टिंग है। अब ये दोनों आपस में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। अब अगर ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है तो मैसेज किस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। सो हियर द रोल इज प्लेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये गैप में से मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। एंड द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन। सो एसिटाइल कोलिन जो है दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर जो हेल्प कर रहा है मैसेजेस को ट्रांसफर होने में फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर टिश्यूज। वी हैव स्टडीड दैट हाउ plants and animals are made up of different type of tissues and how the different type of tissues differ in the body of both plants and animals. Thank you.